So now, in the last video lecture, we discussed till the resolution and finding magnitude of vertical and horizontal component, which have been discussed. And now, in this video lecture, we will be going over the direction of a vector, of how a direction of the vector is determined. For example, you can say that you have a vector, which is v1. V1 is a vector quantity, and now we want to find out its direction. So we can find out its direction by applying or the tangent trigonometry, taking its by considering its rectangular component, which is VA, perpendicular, and OB, which is base. Okay, so the angle, or like you can say the direction of the vector, will be determined by the tan, because we have that rectangular components of that vector, which is perpendicular and base. So those people black, we all know that perpendicular will be multiplied by with base, and then we'll get the tan theta, or the direction. But if we want to find out the angle only, we know that to find out the angle, what we will be doing, we have to remain like let the theta over here and divide 10 on both sides. We'll be dividing 10 on both sides. जब यहाँ से 10 divide करेंगे तो it will be cancelled, but जब यहाँ से करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 inverse हो जाएगा. So that will be theta equals to Vy upon Vx into 10 inverse. Addition of vector हम rectangular components समझ चुके हैं, I think. और मैग्नीट्यूड बताया हुआ इन्होंने कैसे निकालना है, वी एक्स का कैसे निकालना है, फिर वी वाई का निकालें, और फिर वी जो दूसरा वेक्टर है जो वी टू वी है इसका इसका निकालें फिर, और फिर इन दोनों को प्लस कर देंगे तो सेम आंसर आएगा एज द रिजल्टेंट वेक्टर. ओके, सेम यहाँ पे यही हमें बताया हुआ है, और एक और फॉर्मूला दिया हुआ है जो कि है वी वन कॉस थीटा प्लस वी टू कॉस थीटा as by adding at the x1 values and like the rx square, which will be like the r of one vector and the r of second vector. The turn of second vector will like the sine theta, the vertical components sum. So that will be like this. Okay. Again, the right angle triangle, which is the less than DOB. So जो 10 का जो आएगा वो होगा less than DOB होगा. तो OB को जब हम OD से डिवाइड करेंगे, हमें पता है 10 क्या होता है. But now we are not going into this much detail about this, because I think we should discuss it in some other lecture, because it will be a very detailed lecture on this. Okay. So and this is the only thing that I explained you over here, but I want to make a separate video on this lecture. Inshallah, I'll be making one, and that I'll be only explaining this कि how हमारे पास थीटा फाइंड करने के लिए tan इनवर्स मतलब एंगल फाइंड करने के लिए tan इनवर्स और आर एक्स आता है, जो कि मैंने वहां पे भी एक्सप्लेन किया था अभी आपको, कि जो थीटा tan लेस देन डीओबी लिखा हुआ है. लेस देन डीओबी का मतलब हमारे पास एंगल है बिल्कुल लेस देन डीओबी जो tan थीटा, और वहां पे जो कि tan थीटा कर दिया, इसके बाद हमने और आर बाय आर एक्स कर दिया जो कि इसके इक्वल बन गया, और वही सेम बात आ गई. ओके, अब प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आ गए हमारे पास. ठीक है. There are two types of vector products, okay, which can be classified as scalar and dot product, or vector product or cross product. Mean there are two types of vector: scalar product, which is also called as or known as dot product, and one is the vector product, which is also known as cross product. अब जो स्केलर प्रोडक्ट होता है और जो डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक है, वो दो वेक्टर्स होता है ए एंड बी, एंड इट इज रिटन एज ए डॉट बी. ए डॉट बी से लिखते हैं, हमें पता चल गया डॉट प्रोडक्ट से कि डॉट बी से लिखा जाता है. और इसका रिजल्टेंट क्या होता है, अब जो भी वेक्टर का प्रोडक्ट स्केलर होगा उसका आंसर ही स्केलर होगा. स्केलर प्रोडक्ट से हमें पता चल रहा है जो आंसर आएगा दो वेक्टर्स के दरमियान, दो वेक्टर्स भी नो की क्या नाम है वो वेक्टर क्वांटिटीज है, लेकिन इनका आंसर क्या हो जाएगा, स्केलर हो जाएगा. सो दिस इज द लाइक मेन थिंग अबाउट दिस स्केलर डॉट प्रोडक्ट. और जब दो पैरेलल वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड, द रिजल्टेंट क्वांटिटी विल बी अ स्केलर. बोल रही है कि जब इट इज सेइंग कि जब दो पैरेलल मल्टीप्लाई होंगे आपस में, तो रिजल्ट क्या आएगा, एक स्केलर आएगा, विच इज ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा. देखें ए और ए बी, ए से बी मल्टीप्लाई हुआ. ठीक है, तो क्या हो गया, वो कॉस थीटा में आ गया, क्योंकि डॉट की जगह पे हम क्या लगाते हैं हमेशा, कॉस थीटा. अब व्हेन ए एंड बी आर द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड बी, थीटा इज एंगल बिटवीन देम. हमें पता है कि जो थीटा होता है और जो कॉस होता है मीन्स वो एक एंगल होता है बिटवीन देम. अब फिजिकल इंटरप्रेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये कॉमन ओरिजिन पे आएंगे, और ये सब बताया हुआ इन्होंने.
अब नाउ a डॉट b इक्वल टू a मैग्नीट्यूड ऑफ b इन द डायरेक्शन ऑफ a, क्या कह रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट ऑफ b इन डायरेक्शन ऑफ a। ये इस तरह भी हम इसको कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब इन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है, एक जो वर्क होता है वो एक डॉट प्रोडक्ट होता है एफ डी कॉस थीटा का, मतलब एफ डॉट डी होता है। तो डॉट को हम रिमूव करके कॉस थीटा एंगल लगा देते हैं, तो जब एंगल डिस्टेंस और फोर्स मल्टीप्लाई होता है तो हमें क्या मिलता है, वर्क मिलता है। दिस इज वांट टू अंडरस्टैंड। फिर यहाँ पे एक एग्जांपल बताई हुई है। अब एक एग्जांपल के अंदर वो क्या कहना चाह रहा है, इसके अंदर ये कह रहा है कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है आई, एक हमें पता था आई, और वो हम लास्ट यूनिट में डिस्कस करके आए, 90 डिग्री पे जो डॉट प्रोडक्ट आता है आई जो है वो क्या है, एक्स की डायरेक्शन है, और बाय जो है वो क्या है, इसे जे है वो जो वाई की डायरेक्शन है। दोनों आपस में क्या होता है, 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। जब आई जे को हम करेंगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा। तो आई जे कॉस थीटा, कॉस क्या है, कॉस 90 है, जब कॉस 90 पे क्या होता है, जीरो होता है, तो डेफिनेटली पूरी वैल्यू आई जे कॉस थीटा जीरो हो जाएगी। इस तरह से के जे होगा कि जो के है वो भी जेड है और जे है वो भी वो क्या नाम है, वो वाई है, और इन दोनों के बीच में एंगल 90 का होता है, विच मींस कॉस 90 इज इक्वल टू जीरो। आई के दरमियान में भी ऐसा ही है, दैट एक्स एंड जेड have an angle of 90 degree in between them, which makes the cos zero. And when we multiply or the same axis, like when we have same the vectors on same axis, like y is we have vector 1 on x and vector 1 on vector 2 on x2, then the angle between them is zero, which means that cos 0 is equals to 1, so the product will be maximum. ये एक्सप्लेन किया गया इसके अंदर। ओके, अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कि ये हमने पढ़ा, ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, बी डॉट ए इक्वल्स टू ए बी ए कॉस थीटा, एंड दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए। ऑर्डर इररिलेवेंट है इसका लिखना, ये कम्यूटेटिव है, ए बी ए इक्वल्स टू बी। ये हम पढ़ के आ गए कि जो स्केलर प्रोडक्ट होता है दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट वेक्टर का इज जीरो, बट जो इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर जब दे आर पैरेलल तो क्या आएगा, वन आएगा। अब यहाँ पे यही सिर्फ एक्सप्लेन किया हुआ आई जे के जो दैट के हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। और यूनिट वेक्टर्स में ये होगा, जब क्योंकि जब एंगल जीरो होगा तो वन बनेगा, और जब एंटी पैरेलल होगा तो माइनस वन आएगा। ओके, व्हेन वी हैव a 180 डिग्री एंगल, बिकॉज cos 180 is equals to minus 1 or negative, sorry, the self product of vector a is equal to the square of its magnitude। ए जब सेल्फ प्रोडक्ट लेंगे हम, ए cos थीटा हम जब करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर के इक्वल होगा। ये इसका एक अच्छा पॉइंट है। हम इस तरह से इसकी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं कि जो आई कंपोनेंट है उसको आई से ही मल्टीप्लाई करें, जे को जे से और बी के को के से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो उसका आई आई कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि आई जो है वो जीरो में, कॉस में हम ले लेंगे उसको, कॉस थीटा जो है वन के इक्वल आएगा। जब वन आ जाएगा तो क्या नाम है, ए और बी बचा, हमारे पास सिर्फ ए बी ए एक्स बचा, बी एक्स बचा, आई आई जो थे दोनों तो मल्टीप्लाई होकर वो यूनिट वेक्टर से कुछ नहीं, और डॉट प्रोडक्ट है तो आया है वो स्केलर में तब्दील हो गया, जे जे जब स्केलर में हो गया, फिर ऐसे ही के रूप में स्केलर में होगा। अब vector product and cross product will be discussed in the next lecture, and along with the speed, velocity, acceleration, and time. I want to explain nothing over here right now, and Allah Hafiz, will meet you in the next lecture.